آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. گزشتہ شام شہر و اطراف میں اچانک سے برسے بے موسمی بادلوں کی گھن گرج، بجلی کی کڑکڑاہٹ اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہوئی برسات کے سبب کئی مقامات پر تناور درخت گرنے سے ٹریفک میں بھی آئی رکاوٹ. شہر بھر میں رہا بجلی کی آنکھ مچولی کا کھیل جاری، شہریان کو پریشانی کا سامنا. حج 2024 کے لیے عازمین کا چوتھا تربیتی اجلاس حج ہاؤس کی عمارت میں ہوا منعقد. مدینے کا سفر اور مدینے کی زیارت کے عنوان پر حاضرین کی گئی رہنمائی. زر مبادلہ سے متعلق بھی ماہرین نے فراہم کی تفصیلی معلومات. اگلی 2 روزہ نشست 27 اور 28 اپریل کو. آئندہ 24 اپریل کو MIM کے امیدوار امتیاز جلیل داخل کریں گے اپنا امیدواری فارم. بھڑکل گیٹ سے جلوس نکال کر کیا جائے گا طاقت کا مظاہرہ. اس بار بھی جیت کا امتیاز جلیل نے پریس کانفرنس میں کیا دعویٰ. اور اورنگ پورہ جیسے پرہجوم علاقے میں گزشتہ شام اچانک ایک کپڑے کی دکان میں لگی بھیانک آگ. فائر عملے کی کارروائی مکمل ہونے تک دکان میں رکھا سارا سامان جل کر ہوا خاک. دکاندار کا 5 تا 7 لاکھ روپیوں کا مالی نقصان ہونے کی ہے اطلاع. خبریں تفصیل سے. گزشتہ شام اچانک سے شہر و اطراف میں دھواں دھار بارش ہوئی. تیز ہواؤں کے سبب کئی علاقوں میں تناور درخت زمین پر گر پڑے. شہر بھر میں بجلی کی آنکھ مچولی کا کھیل رات بھر جاری رہا، جس کی وجہ سے شہریان کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. شدت کی دھوپ اور جان لیوا تپش کے بعد گزشتہ روز سنیچر کی شام اچانک موسم نے پلٹی ماری اور شام کے وقت تیز ہواؤں کے جھکڑ چلے اور بادلوں کی دل دہلانے والی دہاڑ اور بجلی کی تیز کڑکڑاہٹ کے ساتھ شہر کے تقریباً ہر علاقے میں دھواں دھار بارش ہوئی. کئی علاقوں میں پانی کی جھیلیں اور ندیاں بہتی دیکھی گئیں تو تیز ہواؤں نے بہت سارے مقامات پر درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا. فائر بریگیڈ شعبے کے مطابق انہیں 35 ریسکیو کال موصول ہوئے، جن میں سے بڑی تیزی سے 20 مقامات پر فائر بریگیڈ کے جوانوں نے راحت رسانی مکمل کی اور باقی جگہوں پر بھی راحت کے کام کیے گئے. ان ریسکیو کالز میں اکثر درختوں کے گر جانے ہی سے متعلق تھے، جن میں سڈکو N3، شاہنور واڑی، بیڑ بائی پاس، بہیربند کالونی، عثمان پورہ اور پنچوٹی علاقوں میں درخت گرے. پنچوٹی علاقے میں گرے درخت میں 4 تا 5 افراد پھنس گئے تھے. فائر جوانوں نے انہیں صحیح و سلامت باہر نکالا. اسی طرح حسب معمول بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی گل ہو گئی تھی. قدیم شہر کے کٹکٹ گیٹ، روشن گیٹ، مجیب کالونی، بابر کالونی و دیگر علاقوں کی بجلی گل ہو گئی تھی، جس کے سبب ساکنان کے شدت کی گرمی سے برے حال ہوئے. حج 2024 کے لیے منتخبہ عازمین کا چوتھا تربیتی اجلاس آج حج ہاؤس کی عمارت میں منعقد کیا گیا، جہاں خدمات حجاج کمیٹی کے صدر مولانا نسیم الدین مفتاحی نے مدینے کا سفر اور مدینے کی زیارت کے عنوان پر حاضرین کی رہنمائی کی. یہ تربیتی نشست مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ذکی الدین صدیقی اور عبدالباری پٹیل کی نگرانی میں خدمات حجاج کمیٹی کی جانب سے منعقد کی گئی تھی. آج منعقدہ تربیتی نشست میں اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے منعقدہ عازمین حج کے علاوہ خانگی ٹور ایجنسیوں کے ذریعے سفر حج پر روانہ ہونے والے عازمین نے بھی شرکت کی. نشست کے آغاز سے قبل قاری اسحاق نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی. اس کے بعد خدمات حجاج کمیٹی کے صدر مولانا نسیم الدین مفتاحی نے مدینے کا سفر اور مدینے کی زیارت کے عنوان پر عازمین کی رہنمائی کی. اسی طرح بینک کے آفیسر زبیر انصاری نے عازمین کو زر مبادلہ کے عنوان پر رہنمائی کرتے ہوئے انہیں بتلایا کہ انہیں سفر حج کے لیے کہاں سے انڈین کرنسی کے بدلے ریال مل سکتے ہیں، اس کا قانونی طریقہ کیا ہے. ان تمام امور پر تفصیلی روشنی ڈالی. اس نشست میں 896 مرد اور 819 خواتین، اس طرح سے جملہ 1715 عازمین نے شرکت کی، جن میں اورنگ آباد کے علاوہ بلڈانہ، جالنا اور ناندیڑ کے عازمین بھی شامل تھے. اس نشست کو کامیاب بنانے میں خدمات حجاج کمیٹی کے کارگزار صدر مرزا رفعت بیگ، نائب صدر ارشد انجینئر، ایگزیکٹو ممبر ڈاکٹر عبدالرحیم نور الدین انصاری اور دیگر نے اہم رول ادا کیا. ایڈمنسٹریٹو آفیسر ذکی الدین صدیقی اور عبدالباری پٹیل کے مطابق آخری 2 روزہ نشست 27 اور 28 اپریل کو منعقد کی جائے گی.
औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील आइंदा 24 अप्रैल को अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करेंगे। ये इत्तला आज उन्होंने बज़ात खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को दी। वाज़ेह रहे कि 13 मई को औरंगाबाद पार्लिमानी इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का अमल जारी है। पार्लिमानी इंतखाबात के ऐलान से कबल ही पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से सिटिंग एमपी इम्तियाज़ जलील को उम्मीदवारी देने का ऐलान किया था और इसके बाद ही से उन्होंने अपनी इंतखाबी तशहीरी मुहिम शुरू कर दी थी। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और सहाफ़ियों को बताया कि वो 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे भड़कल गेट से एक रैली निकालने जा रहे हैं, जो जूना बाजार सिटी चौक होते हुए ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचेगी और वो यहां अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करेंगे। इसी तरह इसी रोज़ हरसूल रोड पर ताज होटल से मुत्तसिल मैदान पर उनके तशहीरी दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा। इससे कबल वो और उनके साथी 23 अप्रैल को अमरावती जाएंगे, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते आनंद राज अम्बेडकर के इंतखाबी तशहीरी इजलास में वो शिरकत करेंगे। इसी तरह उन्होंने दीगर मौज़ूआत पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। कैंपेन हम सब मिलकर चलाएंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। दूसरी ये जानकारी है कि 24 तारीख के दिन सुबह 11 बजे भड़कल गेट जूना बाज़ार सिटी चौक गांधी पुतला होते हुए हम अपना फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। 24 तारीख के दिन सुबह 11 बजे भड़कल गेट से निकलेगा। उसी दिन हमारा हरसूल रोड के ऊपर ताज होटल जो है, वो ताज होटल को बिल्कुल लग के एक मैदान है जहां पर हमारा सेंट्रल ऑफिस शुरू किया जा रहा है। हमारा केंद्रीय कार्यालय जो है वो ताज होटल के बाजू रहने वाला है। 24 तारीख से पहले 23 तारीख के दिन मैं खुद और यहाँ के बहुत ढेर सारे हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो अमरावती के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नातू आनंद राज अम्बेडकर साहब के प्रचार के लिए जाएंगे। वहाँ पर अमरावती के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया है। एक जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर जब 24 साल की पत्रकारिता छोड़कर मैं राजनीति के अंदर आया था, तो एक सादा सा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एनसी भी मेरे ख़िलाफ़ में नहीं थी। कोई एक सादा सा किसी को थप्पड़ मारने का, किसी को गाली देने का, ऐसा एक भी मेरे ख़िलाफ़ पुलिस केस रजिस्टर नहीं था। इन 10 सालों के अंदर मेरे ऊपर कुल 12 केसेस रजिस्टर किए गए थे। अब ये हो सकता है कि कुछ चाहने वाले जो है वो खबर ऐसी बना सकते हैं की बघा इम्तियाज जलील कशा प्रकारचा क्रिमिनल आहे, 12 केसेस त्याच्यावर रजिस्टर आहे। तर हे सांगणं खूप महत्त्वाचं आहे की हे जे 12 केसेस माझ्यावर रजिस्टर करण्यात आले होते ते कोणकोणते केसेस होते हे लोकांनाही माहीत पडायला पाहिजे। कारण अल्टिमेटली नाही तर फक्त आपण हेडिंग दिले की इम्तियाज जलीलांच्या विरुद्ध 12 केसेस आहे, तर ते मला असं वाटतं ते क्लिअर पिक्चर होऊ शकत नाही। तर हे 12 केसेस कसले होते, तर शागंज चेलीपुरामध्ये आम्ही एक आंदोलन केलं होतं दारूची दुकान बंद करण्यासाठी। ते एक केस होतं आणि त्या केसमध्ये त्या दारूच्या दुकानवाल्यांनी माझ्या विरोधात तक्रार केली होती की 235 रुपये त्याचे गल्ल्यातून चोरी गेलेले आहे, म्हणजे डकैतीचा केस माझ्यावर रजिस्टर करण्यात आला होता। जे कलम त्याच्यामध्ये लावण्यात आलेली होती। दुसरा म्हणजे आपल्याला माहीत असेल की या शहरामध्ये महाराष्ट्रभरमध्ये लोड शेडिंग सुरू होती आणि लोड शेडिंग आपल्या शहरामध्ये पण होती। सुरुवाती त्यांनी 2 घंटे सकाळी 2 घंटे संध्याकाळी ची लोड शेडिंग सुरू केली होती। त्याच्यानंतर ते वाढवून ते 4 तास सकाळी 4 तास संध्याकाळी ते लोड शेडिंग होत होती आणि कशा प्रकारे लोकांना त्रास होत होता हे आपल्यालाही माहीत आहे। आणि कोणी तुम्ही बघितलं नसेल ते आंदोलन, ते यूट्यूबमध्येही ते अवेलेबल आहे। तर त्याच्या विरोधात आम्ही MSCBवर एक मोर्चा काढला होता, एक धरणं आंदोलन केलं होतं
आणि त्यावेळचे जे चीफ इंजिनियर आहे त्यांचा घेराव करून त्यांना आम्ही लॉक करून त्यांच्या कॅबिनमध्ये त्यांना कोंडून ठेवलं होतं आणि हे मागणी केली होती की जोपर्यंत राज्य सरकार हे विड्रॉ करत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांना सोडणार नाही. आणि त्याचा परिणाम हे झाला होता की संध्याकाळपर्यंत आम्हाला मुंबईवरून त्यांना फॅक्स आला होता की आपण इकडचे हे लोड शेडिंग जे आहे ते आम्ही थांबत आहे करके. तिसरा केस जो होता ते करोनाच्या काळात जे लॉकडाऊन होता आणि त्याचा आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे मी खूप जोरात त्याचा विरोध केला होता की जे सगळं कारोबार ते बंद करणार होते, सगळं दुकानं ते बंद करणार होते. माझा एकट्याचा विरोध होता त्याला की मी म्हटलं होतं की गोरगरीब लोकांना खायला हे नाही आहे, त्यांच्याकडे पैसे नाही आहे, सर्व दुकाने सरसकट ना बंद करता आपण त्याच्यामध्ये काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. मग रात्री आपल्याला माहीत असेल खूप उशीरपर्यंत ते मीटिंग चालली होती कलेक्टर ऑफिसमध्ये आणि रात्री 10:30-11 वाजता त्याचा निर्णय घेण्यात आला होता की या शहरामध्ये आपण ते लॉकडाऊन जे करणार होते 100% ते लॉकडाऊन नाही करणार. त्याच्यानंतर इमिजिएट काय झालं होतं की अनेक सारे दुकानदार जे आहे ते माझ्याकडे आले होते आणि ते इतके आनंदित होते की त्यांना मला उचलून त्यांच्या कांद्यावर हे केलं होतं आणि फक्त या कारणाने की ते माझ्याकडे आले, माझा सत्कार केलं, करोनाचा पिरियड होतं आणि त्यांनी मला आपल्या कांद्यावर घेतलं होतं. तर त्या विरोधात एक केस रजिस्टर करण्यात आलं होतं. तर हे तिसरा केस. चौथा केस जे आहे आपली स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी जेव्हा पुण्याला घेऊन गेले होते आणि सगळे लोकप्रतिनिधी गप्प बसले होते, आम्ही सर्वांना विनंती केली होती आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र यावं. एक स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी इथे मराठवाड्यासारखा एक बॅकवर्ड रिजनमध्ये एस्टॅब्लिश होणं म्हणजे किती महत्त्वाची आहे हे सगळ्यांना पटवून दिलं होतं. कोणत्याही स्पोर्ट्स असोसिएशन पुढे आलं नाही, कोणत्याही राजनैतिक हे पार्टी पुढे आली नाही. मग आम्ही एक आंदोलन केलं होतं आणि ज्या वेळचे जे पालकमंत्री होते सुभाष देसाई साहेब ते डिव्हिजनल कमिशनरला जेव्हा आले होते आम्ही त्याला ब्लॅक फ्लॅग्स दाखवले होते. तर त्याचा एक गुन्हा आमच्यावर रजिस्टर करण्यात आला होता. मग दुसरा एक जे शहराचं नाव बदलण्याची वेळ आली होती आम्ही त्याचं आंदोलन केलं होतं आणि अनेक दिवस आम्ही कलेक्टर ऑफिसच्या समोर बसले होते आणि त्याचा एक केस होता. त्याच्यानंतर नांदेड़ लोकसभा हलके के उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर की इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसे आम देगलूर में रखा गया, जिसमें मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी शिरकत की और आवाम से खिताब किया। महायुति उम्मीदवार के इस तशहीरी जलसे से खिताब करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि मैं सिर्फ बातें बनाने वाला कोई लीडर नहीं हूँ, मैं जिस बात का भी वादा करता हूँ या तयक़ुन देता हूँ उसे जरूर पूरा करता हूँ। उन्होंने किसानों की बहबूद और इस्तेहकाम के लिए आइंदा दिनों एथिनॉल के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि ये किसानों के लिए बहुत ही माविन और मददगार साबित होगा और इस काम और इस तरह के अवामी फलाह व बहबूद के काम करने के लिए उन्होंने महायुति के उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर को वोट देने की अपील हल्के के राय दहिंदगान से की है। तूर, गहू, तांदूळ लावून काही देशाच्या शेतकऱ्याची प्रगती होऊ शकत नाही। शेतकरी अन्नदाता आहे, पण अन्न पिकवून त्यांनी जनतेची सोय केली, पण हा बळीराजा मात्र सुखी समृद्ध संपन्न झाला नाही। खताच्या किमती वाढल्या, औषधाच्या किमती वाढल्या, कापडाच्या किमती वाढल्या। गहू स्वस्त होता, ब्रेड बिस्किट महाग होते, संत्रा मोसंबी स्वस्त होते, ज्यूस महाग होता आणि म्हणून आमच्या सरकारने आम्ही 2004 पासून एकांगी लढत होतो। त्यावेळी काँग्रेस सरकारला वारंवार सांगत होतो की या देशामध्ये 16 लाख कोटी रुपयाचं फॉसिल फ्युएल म्हणजे पेट्रोल डिझेल इंपोर्ट होतं। हे इंपोर्ट करण्याच्या ऐवजी आपल्या शेतकऱ्याला आपण अन्नदात्याच्या ऐवजी ऊर्जादाता बनवू। शेतकरी वीज तयार करेल आणि शेतकरी पेट्रोल डिझेलचा पर्याय देईल। मला सांगताना आनंद होतोय की आमच्या सरकारने इथेनॉलचं इंधन आणलं। ऊसाच्या मळीपासून, ऊसाच्या रसापासून, बांबूपासून, मक्यापासून आणि सडलेल्या अन्नधान्यापासून, तुटलेल्या तांदूळाच्या कणापासून आता इथेनॉल तयार होत आहे। आणि मला आनंद आहे की मी आणि बावनकुळे साहेब आज सकाळी जेव्हा विमानामध्ये आलो माझ्या घरून,
तेव्हा आम्ही टोयोटा कंपनीच्या इनोवा गाडीमध्ये बसलो होतो आणि ती गाडी 100% शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या इथेनॉलवर चालत होती. गांव वालों के इसरार पर तालुका कन्नड़ के नादरपुर ग्राम पंचायत में एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि जारी काम फौरी मुकम्मल किए जाएं। बसूरत दीगर गांव वाले लोकसभा इंतखाबात का बाइकाट करेंगे। अयां रहे के नादरपुर की ग्राम पंचायत आदर्श यानी मिसाली ग्राम पंचायत के एजाज की जानिब पेशकदमी कर रही है। यहाँ के कई काम जब नामुकम्मल रह गए और इस जानिब इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रहा है तो गांव वालों ने ग्राम पंचायत पर दबाव डालकर पंचायत की मीटिंग मुनक़िद करवाई और इस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि सरकारी सतह पर जो भी काम रुके पड़े हैं या जो भी मुतालबात हल तलब हैं उनकी यकसुई की जाए, जिनमें सरकारी अहमियत के हामिल मंजूर शुदा योजना पानंद रास्ते के लिए पाझर तालाब नंबर 1 से मुरुम की फराहमी, अंजना पलसी प्रोजेक्ट के तहत बाएं सोते और झेली नहर की दुरुस्ती, ग्राम पंचायत के तहत रमाई आवास योजना, वजीर आजम आवास योजना, महाराष्ट्र देही रोजगार जमानत के तहत सिंचाई कुएं, गाय गोठे व दीगर कामों की तकमील ग्राम पंचायत के मुतालबे के मुताबिक पूरे करने जैसे कई मुतालबात व मामलात शामिल हैं। गाँव वालों ने इन कामों की अदम तकमील और मुतल्लिका महकमों की गफलत पर नाराज़गी व गुस्से का इजहार तो किया ही है और उन्होंने मुतालबा किया है कि 4 मई तक अगर अधूरे और तवालत में पड़े काम मुकम्मल न हुए तो गांव वाले लोकसभा चुनाव का बाइकाट करेंगे। इस तरह का फैसला भी इस इजलास में किया गया है। या ठिकाणी बैठकीत असे ठरवण्यात आले की अंजना पळशी मध्यम प्रकल्पांतर्गत जो डावा कालवा आहे त्याची तात्काळ दुरुस्ती करावी आणि बोटसाऱ्या देखील त्या लवकरात लवकर दुरुस्त करण्यात याव्यात आणि ग्रामपंचायतच्या मार्फत जे विविध विकास कामं पानंद रस्ते जे झालेले आहेत त्यासाठी तात्काळ मुरुम उपलब्ध करून देण्यात यावा। तसेच MREGS मार्फत जी कामे चालू आहेत सिंचन विहिरी असतील, गायगोटे असतील किंवा घरकुले असतील, रमाई अंतर्गत घरकुले किंवा पंतप्रधान आवास योजनेतील घरकुले इत्यादी सर्व कामासाठी रेती उपलब्ध करून देण्यात यावी असे ग्रामपंचायतने यापूर्वीच निवेदनात सांगितलेले आहे। हज हाउस में आज़मीन हज की चौथी तरबियती नशिस्त के दौरान आज वहां आग लग जाने की एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे यहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज़कीउद्दीन सिद्दीकी और अब्दुल बारी पटेल ने गलत और बेबुनियाद बताते हुए शहरियान से अपील की कि इस तरह की अफवाहों पर क़तई तवज्जो न दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़कीउद्दीन सिद्दीकी हज हाउस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हमारे बारी पटेल साहब ये भी मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। अभी जो एक न्यूज़ चल रही है एक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर, वो फेक न्यूज़ है। थोड़ा सा जो स्पीकर में जो है, क्योंकि मौलाना जो बयान कर रहे थे वो स्पीकर में कुछ छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर एक्सटेंशन से उसको वहीं पर कंट्रोल कर दिया गया हुआ है। तो बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते ऐसा कोई उसका आप गलत मतलब ना लेते हुए उसको इशू ना बनाएं, क्योंकि हम बारी पटेल और हम लोग जिम्मेदार होने के नाते हम ये आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह निशिस्त सही अच्छी तरीके से हुई है। किसी शख्स ने या किसी अंदर से किसी ने वायरल किया है और वो न्यूज़ चैनल को चांस मिला और उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया, जबकि हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमारे पुलिस वाले जो हैं जो खिदमत के लिए हुए हैं वो भी मौजूद थे, जो कि उनकी ड्यूटी भी है। हमारे पास 10-12 पुलिस वाले जो खिदमत के लिए वहाँ पर हज के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उन्होंने भी मौजूद थे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो 2 लफ्ज़ कहें कि भाई ऐसी कोई हादसा हुआ नहीं। अभी जो साहब ने जो बोले वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ अफवाह है। और जो मीडिया वालों को जो थोड़ा शॉर्ट सर्किट का माइक के अंदर जो शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उसके वजह से जो थोड़ा सा ऐसा धुआं निकला था और वो जब वहाँ कवर हो गया। यूट्यूब पर जो अभी 11:30 बजे जो हादसा बताया जा रहा है ये फेक है और जो धुआं भी बताया जा रहा है वो फायर एक्सटिंग्विशर हमारे जो यहाँ पर स्टाफ मेंबर है उन्होंने फ़ौरन एहतियाती तौर पर जो फायर एक्सटिंग्विशर को शुरू किया, उसकी वजह से वो फॉग था तो वो धुआं जो आग लगी ऐसा जो बताया जा रहा है वो यूट्यूब की जो न्यूज़ है उससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ हुआ नहीं है और हमारी जो नशिस्त हुई है आयोजित नशिस्त है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, इसमें कुछ भी हादसा वगैरह कुछ हुआ नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मुल्हिका कॉलेजों में पेपर लीक होने के सबब इन मज़ामीन के इम्तहानात दोबारा से लिए जाने के अहकाम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किए गए हैं। आया रहे कि मज़कूरा इम्तहानात दोबारा लिए जाने के अहकाम तो दे दिए गए, ताहम मुतालिका तलबा और तलबा तंजीमों के कारकुनान ने शोबे इम्तहानात के अफसर आला से मुलाकात की है और ये अहकाम वापस लेने का मुतालबा किया है और डिग्री कोर्स के लिए मुनक़िद हो चुके 8 व 10 अप्रैल के इम्तहानात शोबे इम्तहानात दोबारा ले रहा है। इस मुतालिक तलबा का मौक़िफ़ पेश करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन के सचिन खंडारे, जयेश पठाड़े के साथ पैंथर्स विद्यार्थी अघाड़ी के शहर सदर गुणरत्न सोनो ने, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना के अतुल कामले और दीगर कसीर तादाद तलबा व तलबा तंजीमों के अफराद मौजूद थे। ज़िला उस्मानाबाद के कहरज़दा करार दिए जा चुके तालुका वाशी में KYC के लिए किसानों के अंगूठा लगाने की शर्त मनसूख की जाए, इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम तहसीलदार के सुपुर्द किया गया। ये मुतालबा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की जानिब से किया गया है। तहसीलदार को दिए गए मेमोरेंडम में वजाहत की गई है कि इस तरह की दिक्कत भरी शराइत के सबब किसानों को बेतहाशा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के तहत पाबंदी के साथ कर्ज की किस्तें अदा करने वाले किसानों के लिए ऐलान की गई 50,000 की अनुदान रकम फौरी जमा की जाए। ताल्लुके को चूँकि कहरज़दा करार दे दिया गया है, इसलिए किसानों के मजमूई और यकसां फसल कर्ज वो बिजली माफ किए जाएं। 2023 में दी गई पेशगी रकम के बाद 75% बीमा की रकूम तकसीम की जाएं। इस तरह की मुतादिद मुतालबात इस मेमोरेंडम के जरिए पेश किए गए हैं। महजर वाशी के तहसीलदार के नुमाइंदे गोवर्धन तौले ने कबूल किया, जबकि इस मकतूब पर संगठन के अहदेदारान और कमोबेश 50 किसानों के दस्तखत सब्त हैं। 3-4 वर्षापूर्वी निर्णय झाला 50,000 रक्कम शासनानं पुढे द्यावी म्हणून, तर ती रक्कम अद्याप शासनाने जमा केलेली नाही, तर त्याचा विचार होऊन ती रक्कम ताबडतोब जमा करण्यात यावी। तिसरी मागणी आहे की वाशी तालुका शासनाने दुष्काळग्रस्त जाहीर केला आहे आणि दुष्काळाचा जे काही निकष आहे त्या सगळ्या निकषात वाशी तालुका बसला आहे। यामुळे शासनाने वाशी तालुका दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे पीक कर्ज आहे शेतकऱ्याचे सरसकट माफ करण्यात यावं। तालुका फुलमरी के घाट नांदरा में कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए जमात इस्लामी की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जमात इस्लामी हिंद की घाटनांदरा शाख की जानिब से ईद मिलन का ये प्रोग्राम मकामी ग्राम पंचायत दफ्तर में मुनक़िद किया गया है। इस मौके पर रखी गई तकरीब की सदारत जलगांव से आए मौलाना अब्दुस्समी ने की। मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि इस धरती पर बसने वाले सारे ही इंसान अल्लाह का कुंबा हैं, चुनांचे हमें चाहिए कि हम इस मुल्क में आपसी मेल मिलाप को फ़रोग़ दें, किसी भी किस्म के भेदभाव और समाज में तफरक़ा पैदा करने वाले काम न करें और भाई भाई की तरह रहते हुए मुल्क के फ़िरक़ावाराना अमन व सुकून को बरकरार रखें। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत गाँव के साकिनान व अहम अफराद मौजूद थे। SIO के यूनिट सदर शेख सलीम ने इब्तदा में प्रोग्राम की गर्ज़ गायत और अहमियत से वाकिफ़ करवाया। प्रोग्राम में पद्माकर जोशी ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया, जबकि आखिर में शेख अकील ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए जमात इस्लामी यूथ विंग के कारकुनान के अलावा यूथ विंग सदर इमरान रमज़ान खान व SIO के कारकुनान ने अनथक मेहनत की। गुज़िश्ता शाम औरंगपुरा इलाके में मौजूद फैशन गैलरी मेंस वेयर नामी दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें 5 से 7 लाख रुपयों का माली नुकसान होने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शाम शॉर्ट सर्किट के सबब औरंगपुरा इलाके में मौजूद मज़कूरा दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसने दुकान को अपने नरगे में ले लिया और उसमें रखा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इस हादसे की इत्तला फौरी फायर ब्रिगेड अमले को दी गई और फायर फाइटर्स ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और आग फैशन गैलरी से आगे न बढ़ पाई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, मगर दुकानदार का 5 से 7 लाख रुपयों का माली नुकसान होने की इत्तला है। अम्बेडकर नगर इलाके में शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वाले एक शख्स को सिडको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से गैर कानूनी शराब का जखीरा भी जब्त किया गया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक खुफिया ज़राए से सिडको पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अतुल वर्मा को खबर मिली थी कि
अम्बेडकर नगर इलाके में एक शख्स शराब का गैरकानूनी कारोबार कर रहा है, जिस पर इंस्पेक्टर यरमे ने अपने अमले के साथ वहां छापा मारा और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। महरूज शख्स का नाम अमुल भरत दाभाड़े बताया जा रहा है। उसके कब्जे से गैरकानूनी शराब का जखीरा भी जब्त किया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता शाम शहर और अतराफ में अचानक से बरसे बेमौसमी बादलों की घन गरज, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं के साथ हुई बरसात के सबब कई मकामात पर तनावर दस्त गिरने से ट्रैफिक में भी आई रुकावट। शहर भर में रहा बिजली की आंख मिचौली का खेल जारी, शहरियान को परेशानी का सामना। हज 2024 के लिए आज़मीन का चौथा तरबियती इजलास हज हाउस की इमारत में हुआ मुनक़िद। मदीने का सफ़र और मदीने की ज़ियारत के उन्वान पर हाज़रीन की गई रहनुमाई। ज़र मुबादला से मुताल्लिक़ भी माहिरीन ने फराहम की तफसीली मालूमात। अगली 2 रोज़ा नशिस्त 27 और 28 अप्रैल को। आइंदा 24 अप्रैल को एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील दाखिल करेंगे अपना उम्मीदवारी फॉर्म। भड़कल गेट से जुलूस निकाल कर किया जाएगा ताकत का मुजाहरा। इस बार भी जीत का इम्तियाज़ जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा। और औरंगपुरा जैसे पुरहजूम इलाके में गुज़िश्ता शाम अचानक एक कपड़े की दुकान में लगी भयानक आग। फायर अमले की कार्रवाई मुकम्मल होने तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। दुकानदार का 5 से 7 लाख रुपयों का माली नुकसान होने की है इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।